Screen is visible, student? Yes, sir. Yes, Ah. sir. So Yes, sir. we are going to discuss structure of sucrose. This is disaccharide, and sucrose is made up of two sugar, glucose and fructose. We will take alpha glucose and beta fructose. So I am drawing alpha glucose. Okay, alpha glucose. This one H on top side at carbon number 1, then it will be alpha glucose. Okay, so this is alpha. Sorry, this is OH. H. This is HOH. This is, students, alpha glucose. Now I am going to draw beta fructose. Beta fructose. You know that fructose is 5-membered. Fructose is 5-membered. Last time I told you fructose is 5-membered. So what will happen? Carefully देखेंगे आप. In beta, OH will be on top and side. This is carbon number 2, and this is what, student? CH2OH. At carbon number 3, OH will be on top side, H. 4 HOH. 3, 4. At carbon number 5, CH2OH and H. This is 5, this is 6, this is 1. So when these two molecules will react with each other, so result in the formation of water molecule. Result in the formation of what, student? Water molecule. So carbon number 2 and carbon number 1, they will react with each other, result in the formation of what? वो आप स्ट्रक्चर देख लें क्या बन गया. तो जो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, वो तो देखो क्या हुआ, H OH OH H H OH and last CH2OH. It is the part of glucose, and this is the part of fructose. This is the part of fructose, students. Carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5 and 6. So what is happening? This OH is reacting with this H, result in the formation of water. Mean this O will be connected with this carbon number 2. This O will be connected with this carbon number 2. This. Okay. So this is the structure of sucrose. This is the structure of sucrose. But important thing is, student, the bond, this one, the bond through which these two sugars are linked, this one is known as beta. Okay, beta carbon of carbon number 2, beta, या आप इसको क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा, बिकॉज अल्फा इज द ग्लूकोज and beta is the fructose. Beta is the fructose. Alpha beta 1 to 2. Alpha is the carbon number 1 of glucose. Okay, and 2 carbon is the beta fructose. 2 carbon किसका है, beta fructose का है. So alpha beta 1 to 2 glycosidic linkage. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? सो द बॉन्ड थ्रू विच टू सुगर्स विल लिंक विद ईच अदर, वो बॉन्ड, वो लिंक जिसके द्वारा दो सुगर आपस में जुड़ जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. स्टूडेंट ये बताओ जल्दी से, आपको समझ में आया कि नहीं आया? सुक्रोज, सिंपली यू विल टेक बीटा fructose and alpha glucose, and you will link through 1 to 2 glycosidic linkage. बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताओ.
कोई डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। चलिए आगे, अब मैं सुक्रोज के बारे में इसकी दो प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। एक, हाँ, इसमें आता है इसकी एंगल ऑफ स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। सुक्रोज की स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होती है प्लस में 66.5 डिग्री। मतलब क्या हुआ फिर, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज एंगल ऑफ रोटेशन इज प्लस, मीन ग्लूकोज जो है, सॉरी सुक्रोज जो है, इट इज ये क्या है, इट इज योर डी शुगर, ठीक है ना। अब व्हाट वी आर गोइंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज इट। सो ये ध्यान से समझेंगे, इफ यू विल टेक C12 H22O11 and you will add water to it. Last time I told you, if you will add water to it and an enzyme, and name of that enzyme is invertase. क्या नेम है? Invertase. Okay, so you will get what student? You will get two sugars. First is alpha glucose प्लस सेकेंड शुगर क्या होगी स्टूडेंट, जिनसे ये बन रहा है? सेकेंड शुगर होगी बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। बट व्हाट वाज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सुक्रोज? क्या थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट? कॉन्फ़िगरेशन इज डी, दिस इज डी, ग्लूकोज इज ऑल्सो डी, इसलिए मैंने इस बताया था ये डेक्स्ट्रोज शुगर भी कहलाता है। बट फ्रक्टोज इज एल एंड इट्स एंगल ऑफ रोटेशन इज प्लस 66.5 डिग्री एंड ग्लूकोज की एंगल ऑफ रोटेशन जो होती है प्लस 52.5 डिग्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज माइनस 92.4 डिग्री। तो क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, आपने इस कंटेनर में सुक्रोज ली, क्या लिया? सुक्रोज, और आपने इसकी एंगल ऑफ रोटेशन चेक की, तो आपने क्या पाया कि भाई ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहा है, तो ये हो गया डी। अब आपने इसके अंदर एक एंजाइम डाल दिया इन्वर्टेज। अब आपके पास जो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? मिक्सचर मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलेगा। हमने क्या पाया, इसकी एंगल ऑफ रोटेशन जो थी बच्चों, वो क्या थी, सारे की बता रहा हूं मैं, वो एंटी क्लॉकवाइज थी। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्यों आई? आप यहां देखो, ग्लूकोज की कितनी है, साइन छोड़ दो, अभी साइन तो जस्ट ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, प्लस साइन इंडिकेट्स कॉन्फ़िगरेशन इज क्लॉकवाइज, माइनस इंडिकेट कॉन्फ़िगरेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू देखो आप, वैल्यू कितनी है उसकी 52.4 और इसकी कितनी है फ्रक्टोज वाले की 92.4। किसकी ज्यादा आई, किसकी वैल्यू ज्यादा है? माइनस वाले की, मतलब फ्रक्टोज वाले की वैल्यू क्या है, साइन छोड़ दो आप, ज्यादा है। तो ये शुगर ये चाहता है क्लॉकवाइज रोटेट कर पाना, ये चाहता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यानी कि ये ओवरऑल जो ये मिक्सचर जो है, इसमें एंगल ऑफ रोटेशन क्या रहेगी आपकी? माइनस रहेगी, क्योंकि किसकी वैल्यू ज्यादा है? कौन डोमिनेंट करेगा? माइनस वाला, फ्रक्टोज जो है वो डोमिनेंट कर पाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर शुगर तो आपकी थी डी, लेकिन जब आपने उस शुगर को हाइड्रोलाइज किया तो आपको कॉन्फ़िगरेशन जो मिली स्टूडेंट्स, वो कैसी मिल गई? वो माइनस मिली। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट बना वो कैसा वाला बना? माइनस वाला बना। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, और बदली कैसे? वो बिल्कुल उलट गई। उलट का मतलब क्या है कि वो इन्वर्ट हो गई। क्या हो गई? वो इन्वर्ट। तो जिस एंजाइम की वजह से ये इन्वर्ट हुई, हमने उस एंजाइम का नाम इन्वर्टेज रख लिया। बात समझ में आई? अब हम इसको इन्वर्टेज एंजाइम क्यों कहते हैं। दूसरी बात आपको समझनी है, ये टॉपिक आपका कहलाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ
केन शुगर, कि जो शुगर केन नहीं, केन शुगर, ठीक है ना, केन शुगर मतलब चीनी जो है वो इन्वर्ट क्यों हो रही है, मतलब कैसे हो रही है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट inversion of cane sugar, because configuration is D, sucrose has D configuration, but on hydrolysis it will give the L configuration, that's why it is. समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? Yes, sir. और एक बात और देखो, सुक्रोज आपका ध्यान से समझेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता था ना, नॉन रिड्यूसिंग। उसका कारण ये है कि कार्बन नंबर 1 फ्री होना चाहिए, कार्बन नंबर 1 फ्री होना चाहिए, मतलब लास्ट कार्बन जो है जहां से शुरुआत हो रही है। आप देखो इसमें सुक्रोज में कार्बन नंबर 1 फ्री नहीं है। किसका फ्री नहीं है? जहां से वो लिंक हो रहे हैं। देखो ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर फ्री है ही नहीं। फ्रक्टोज में तो वैसे कार्बन नंबर 1 अल्कोहलिक ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, लेकिन फ्रक्टोज का कल मैंने स्ट्रक्चर बताया था, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप उसमें कहां है? फ्रक्टोज में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर होते हैं। कहां पर होते हैं स्टूडेंट्स? 2 पर होते हैं, ठीक है ना। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है CHOH4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है, यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। तो जब भी कोई आप डाइसैकेराइड बनाएंगे, ये ध्यान से समझना है, बुक में मेंशन नहीं है इसलिए बता रहा हूं मैं, अलग से टॉपिक है ये, ठीक है। जब भी आप कोई डाइसैकेराइड बनाएंगे, अगर उसमें ग्लूकोज यूज हो रहा है तो आप चेक करो क्या ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्री है। अगर वो स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, तब तो वो देखो CHO ग्रुप रिएक्ट करेगा किसके साथ? टोलेंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अगर वो फ्री नहीं है तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं बनाएगा। अब अगर वहां फ्रक्टोज हुआ तो आप चेक करोगे कार्बन नंबर 2, अगर कार्बन नंबर 2 फ्री हुआ, किसी के साथ रिएक्शन में नहीं हुआ, तब तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब आपको मैं यही कह रहा हूं, आप इस शुगर में चेक करो, ये जो आपकी शुगर बनी है, यहां ग्लूकोज है, तो चेक करो क्या ग्लूकोज फ्री है? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्री है? नहीं है, वो कार्बन नंबर 1 के द्वारा दूसरी शुगर से जुड़ा है। ऐसे ही आप चेक करो। अब इसका कार्बन नंबर 1 चेक नहीं करोगे आप, क्योंकि फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन चेक करना होता है हमने? कार्बन नंबर 2। तो क्या कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का फ्री है? नहीं है, वो भी किसी दूसरी शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ना इसमें 1 फ्री है, ना इस वाले का 2 फ्री है। इसलिए ये शुगर जो होती है ना सुक्रोज, आपकी किस कैटेगरी में आती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आती है। बात समझ में आई? नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि आप बताओगे इसका कार्बन नंबर 1 फ्री नहीं है, बस इतना भी लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कितनों को समझ में आया? जल्दी से अपने हैंड रेज करो, जिसको समझ में नहीं आया अनम्यूट करके डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन। आशुतोष, हुमा, रिदिमा, जोया, अमन, आ गया, चलो समझ में, ठीक है। तो अब देखो मैं आगे आपको टॉपिक करवाता हूं। नेक्स्ट है कि अगली शुगर ले लेते हैं हम, उसमें देखेंगे कार्बन नंबर 1 फ्री होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट शुगर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लैक्टोज, आई एम टेकिंग लैक्टोज। सो स्टूडेंट्स, formula of lactose is again C12H22O11. When lactose will get hydrolyzed, so you will get, what you will get student? Can anybody tell me? Lactose, Galactose, glucose. हाँ, galactose प्लस ग्लूकोज,
और गैलेक्टोज जो होगा आपका बीटा होगा, और ग्लूकोज जो होगा वो भी आपका बीटा होगा। ठीक है, चलिए फिर मैं देखो बीटा गैलेक्टोज बना लेता हूं। ये ऑर्डर में भी याद रखना, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में भी याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग बीटा गैलेक्टोज। फॉर बीटा व्हाट विल आई डू स्टूडेंट, आई विल टेक OH ऑन टॉप साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कहां डिफरेंस होता है? कार्बन नंबर 4 पर। कार्बन नंबर 4 पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में स्टूडेंट्स क्या है? डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? वो ये डिफरेंस है, यहाँ OH ऊपर होगा, ग्लूकोज में नहीं होगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी किस तरह से स्ट्रक्चर उसका बनेगा। एंड दिस इज CH2OH and this is H. Okay, this is what student beta galactose and it is different from glucose at carbon number 4. तो अब मैं बनाने जा रहा हूं बीटा glucose. For beta I will take OH on top side. This is carbon number 1, H, OH, OH, H. At carbon number 4 what will I take student? Because this is the distinguish point between glucose and galactose. ओके, तो ये आप देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस, दे आर डिफरेंट from each other at carbon number 4 only. Clear? These two compounds are reacting with each other. What? How they will react? They will react with each other and will form water. तो देखो ये वाटर कैसे निकालेंगे? OH यहाँ से और H यहाँ से। क्या निकल के गया स्टूडेंट? ये What is this? Water. ठीक है ना? अच्छा, वाटर क्यों? Look here. If C6H12O6 mean beta galactose will react with again C6H12O6 mean glucose, then they will form how many carbon? 6 and 6 student 12. ठीक है ना? How many hydrogen? 12 and 12 24. लेकिन हम ओनली 22 लेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमने कहीं और निकाल दी। 6 and 6 कितने हो गए? 12, बट आई विल टेक 11। इसका मतलब एक ऑक्सीजन मैंने कहीं बाहर निकाली। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दिस इज लैक्टोज। ठीक है, चलिए अब देखो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ध्यान से समझना है, बहुत आसान और इजी स्ट्रक्चर है। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, इस वाली साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कार्बन नंबर 2 लिख लो पहले आप। ये गलत हो गया, ये OH होता है। H, OH, OH, H, OH, H, and at carbon number 5, this one carbon number 5, CH2OH and H. ठीक है, अभी मैं अल्फा ग्लूकोज वाला पार्ट और लिख लेता हूं। OH, H, this is carbon number 1, carbon number 2 HOH, H, OH, carbon number 3 OH, H. ओके, कार्बन नंबर 4 अभी रहने देता हूं, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। 5 CH2OH and H. नाउ कम टू द कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज, उस पे सिर्फ नीचे H रह गया, नीचे सिर्फ क्या रह गया? H। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा था ये तो पूरा गायब हो गया। ठीक है, ऐसी 4 वाले पर, ग्लूकोज के 4 वाले पे ऊपर H रह गया, ये ऊपर H रह गया, और नीचे वाला हिस्से में बस एक ऑक्सीजन रह गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ व्हाट स्टूडेंट, आई एम राइटिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली, दिस वन O, तो वो ये मैंने लिख ली ये। और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो जाएगी? अब कार्बन नंबर 1 से। तो ये मैंने किससे कनेक्ट कर दी? कार्बन नंबर 1 से, ऐसे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ये कार्बन नंबर आपका 4 हो गया, 4, 3, 2, 1, 5, 6 ऑलरेडी देयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट स्टूडेंट? लैक्टोज। अच्छा, मुझे इसमें एक बात बताओ, ये क्या था ये वाला हिस्सा? दिस इज द बीटा गैलेक्टोज। सो बीटा कार्बन का कौन है? 1 है, और 4 कार्बन किसका है? ग्लूकोज का है।
बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम कार्बन नंबर, छोटा कार्बन जो होगा ना उससे शुरू करेंगे। तो 1 कार्बन किसका है, देखो किसका है स्टूडेंट, गैलेक्टोज का है, ये ध्यान रखना। पता चला आपने ग्लूकोज का बना दिया। तो बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया है आपका। लेकिन मुझे बच्चों इसमें एक बात तो बता दो आप, क्या आपको इन पूरी शुगर में कार्बन नंबर 1 फ्री दिख रहा है किसी का? टेल मी। नहीं। क्यों? ये कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का फ्री है कि नहीं है? इसने किसी के साथ रिएक्शन थोड़ी की हुई है। यहां देखो गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 बंध गया, ये बंध गया इस शुगर के साथ, लेकिन ये वाला हिस्सा तो फ्री है कि नहीं है? सुक्रोज में चेक करो, सुक्रोज में एक बार देखो, यहां कार्बन नंबर 1 फ्री नहीं था, वो बंधा हुआ था दूसरे से। यहां फ्रक्टोज है, तो इसका मैं कार्बन नंबर 2 चेक करता हूं। वो मैंने आपको बताया था ना, कार्बन नंबर 2 क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 पे ही कीटोन है, पहले पे नहीं है। पहले पे तो अल्कोहल है, उसका क्या करूंगा मैं लेके? अल्कोहल रिड्यूसिंग थोड़ी ना है, टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन पे एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होती हैं। तो फ्रक्टोज अगर किसी शुगर में होगा तो मैं चेक करूंगा कार्बन 2 फ्री है क्या। ग्लूकोज फ्री होगा तो मैं चेक करूंगा कार्बन 1 फ्री है क्या। तो मैंने सुक्रोज में चेक किया, ना 1 फ्री था ना 2 फ्री था, इसलिए इसको कहा नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन अब जब मैं इसमें आया तो मैंने क्या देखा, भाई इसका 1 तो बिजी है, गैलेक्टोज का 1 तो बिजी है, बट ग्लूकोज का 1 फ्री है। इस कारण ये शुगर जो है आपकी रिड्यूसिंग होगी। कैसी शुगर होगी स्टूडेंट्स? ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। और मैंने बताया है डाइसैकेराइड में, क्या बताया स्टूडेंट मैंने, इन डाइसैकेराइड आपकी लैक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है। इन तीनों में इसको छोड़कर ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? बिकॉज इट्स कार्बन नंबर 1 and 2 आर नॉट फ्री। हियर कार्बन नंबर 1 डेफिनेटली विल बी फ्री। लैक्टोज में तो मैंने शो कर दिया आपको, लैक्टोज में तो देखो ये मैंने शो कर दिया आपको, कार्बन नंबर 1 क्या फ्री है, तो इसलिए क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और लैक्टोज जो होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये आपकी मिल्क शुगर भी कहलाती है। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर के नाम से कौन जाना जाता है? लैक्टोज। ठीक है ना? हाँ, तो अब ध्यान रहेगा, लैक्टोज क्या है आपकी, मिल्क शुगर। और सबसे ज्यादा, और ये सबसे कम मीठी होती है लैक्टोज शुगर, ठीक है ना। लैक्टोज से ज्यादा तो आपका जो स्वीट है वो माल्टोज होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। और माल्टोज से ज्यादा आपका कौन होता है, ये देखो दोनों डाइसैकेराइड है, इन दोनों डाइसैकेराइड से ज्यादा स्वीट होता है आपका मोनोसैकेराइड का गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड का आपका गैलेक्टोज। हालांकि इनमें कोई खास अंतर नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं। और इससे भी ज्यादा जो स्वीट होगा आपका वो होगा फिर फ्रक्टोज, और इससे भी ज्यादा होगा ग्लूकोज, और इनसे भी ज्यादा जो होगी फिर वो आपकी चीनी होगी, सुक्रोज। और इससे भी कई ज्यादा जो मीठे होंगे वो होंगे एस्पार्टेम, ठीक है ना, और एलिटेम, ठीक है ना, और एक और आता है सुक्रोलोज, और उससे भी ज्यादा एक और आता है सैक्रीन। ये चीनी से भी ज्यादा मीठे हैं, ये भी हालांकि मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है ना। इस चैप्टर में तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत मीठे होते हैं। ये तो एलिटम तो बहुत ज्यादा है, 500-600 गुना ज्यादा मीठा होता है रिलेटिव स्वीटनेस की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो हम नेक्स्ट है, हमारे पास लास्ट शुगर रह गई, वो रह गई हमारी कौन सी स्टूडेंट, माल्टोज। अब कौन सी रह गई हमारी, माल्टोज। तो माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव व्हाट, क्या देगा ये, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, it will give 2 molecules of glucose, okay, and both will be alpha, both will be alpha. So draw the structure of alpha glucose, student.
Alpha में H will be on top side. This is what, student? Alpha glucose plus alpha glucose. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is what? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So what you will do, student? Again you will release the water molecule. So how water molecule will go? This OH will react with this H. Okay, so what will be the product? What will be the product? Just 2 unit H OH OH H H OH CH2OH and H. Similarly, H OH H OH OH and CH2OH and H. Now, student, what is happening? H on top side will remain as such. H of this carbon will also will remain as such. But what is happening? This oxygen has linked with this carbon. Mean this one. Okay, carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the name of this bond? What will be the name of this bond, student? What will be the name of this bond? Because both unit are alpha. Alpha. 1 to 4. 1 to 4. Glycosidic linkage. Glycosidic linkage, student. Okay, so can anybody tell me carbon number 1 is free in this sugar? Yes, sir. हाँ देखो, ये जो है ये कार्बन 1 फ्री है कि नहीं है? दिस कार्बन ये किसी शुगर से लिंक है क्या? किसी अदर शुगर से? अपने आप से तो जुड़ा ही होगा क्या? लेकिन इसका वाला बंद गया, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज फ्री. दैट्स व्हाई अगेन दिस इज रिड्यूसिंग शुगर. दिस इज रिड्यूसिंग शुगर. बात समझ में आई कि नहीं? एंड दिस इज नॉन एज, ये तो माल्टोज होगी ना, ये आपकी माल्टोज कहाँ मिलती है? कोई बता सकता है? इट इज प्रेजेंट इन माल्ट. अब ये माल्ट क्या होता है? माल्ट. स्प्राउट के बारे में सुना होगा आपने. जो स्प्राउटेड सीड्स होंगे, मतलब जर्मिनेटेड, जर्म वाले नहीं, ग्रो करने वाले, जो जिसमें से मतलब कोई सीड है उसमें से वो निकल गए होंगे ये, ठीक है ना? तो ग्रो करने शुरू हो गए होंगे. जैसे पानी में आपने लगा के रख दिया चने को, तो उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर ये वाली शुगर बन जाती है. कौन सी शुगर? माल्टोस शुगर. ठीक है ना? बार्ली ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये होती है. बार्ली ग्रेन में, बार्ली सीड्स या ग्रेन में. क्लियर है? बात समझ में आ गई? जल्दी से हैंड रेस करके बताओ कितनों को ये वाली बात समझ में आई. मैं फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. आशुतोष, आशुतोष, यस सर. क्या समझ में आया? बता जरा. सर ये जो माल्टोस होता है ये रिड्यूसिंग शुगर है. ये किन किन यूनिट से मिलके बना है? सर 2 molecules of glucose. बॉन्ड बिटवीन देम इज Sir, glycosidic linkage.
number through which it is linked. कौन सा कार्बन फर्स्ट एंड फोर्थ, है? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट ठीक एंड है, फोर्थ। ठीक है। अमन कुमार चौधरी, अमन, शिवांकर, हाँ सर। लैक्टोज में क्या क्या था? फ्रक्टोज, अच्छा, और अरे भाई क्या था लैक्टो इसमें? आयशा, यस सर। क्या क्या था इसमें? सर